Okay, Jain Sudesh. Jain, sir. Jain, both to both of you. Okay, first of all, congratulations कि आपने अपना Thank you, sir. किया. What's your rank in OTA? So my rank is on rank 163. All India rank 163. It's an impressive rank, Sudesh. Yes. Thank you, sir. Actually. Thank you very much, sir. सुदेश, आज के वीडियो में हम आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस किया. कब ज्वाइन करने का तुमने सोचा इंडियन आर्मी, कब कैसे रिटर्न की प्रिपरेशन की, कैसे एसएसबी को अप्रोच किया, कैसे पिछले कॉन्फ्रेंसेस रहे थे और इस बार तुमने क्या अलग किया था जो तुम्हें रिकमेंडेशन और इतनी अच्छी रैंक हासिल करने में मदद किया. ओके, सो कंफर्टेबल सुदेश? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. बेसिक Yes, sir. Yes, sir. Go on. अपने बारे में क्योंकि ऑडियंस पूरी देखने वाली है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड आपकी जर्नी एनएसएसबी जर्नी के बारे में प्लीज. Okay, sir. So starting with my introduction, sir. Currently, I'm 22 age, and I'm living in Gwalior. But being an army brat means my father is in the army, still serving. So I've traveled some few places in Punjab and Maharashtra also. Means studied in army public school only and lived in cantonment area only. Right from the first class, first standard, and LKG also till 12th standard. Then so after my means this 12th standard, I joined Delhi University as my for my bachelor degree and went there. So in the I'll say that in my second year of my graduation bachelor's degree, I means there was a fest going on in my college, NCC fest. So as a chief guest, there were some officers. Means don't remember the name, but they were the chief guest. And then I again all the means memory of cantonment areas and army life and army brat as army brat I have lived came rushing to me. And NCC was also there. Means I saw means my means colleague and friends, my classmates in the NCC dress. So that hit me, and that happened in the second year of my graduation, which was I remember 2022. And after that, that was a moment means I decided to I should start my preparation for CDS. First, I gave FCAT as my first because my roommate suggested me to give, and I cleared that exam my first attempt with little preparation only. Then I get to know about CDS, and I thought that I should also start preparation for CDS. But what happens in my graduation that I had lots of subject in my graduation as this major accounts and minor economics subject BCom honors I was doing. So in second or third year, I was not able to fully prepare, fully give time to the CDS preparation. And as a commerce student, sir, I had not studied this science subject, geography and politics. Apart from means this, I only studied accounts and business studies in my 12th college also. So I gave my first attempt in my last year. Last year of my graduation, 2023. But I did not make it because I was not prepared that time. So when I completed my graduation, I decided to give my time, start all the preparation from the start reading NCERT and decided to study the subject and syllabus preparedly, fully with notes. So I started from zero actually. From zero, I took ninth class NCERT and geography also, politics from this Lakshmikant book, and I left some subject also. I mean that was my decision. Ki I will not study history because I learned that from my previous attempts कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना थोड़ा टफ होते हैं. अच्छा, तो तो वो मेरा था, तो मैंने हिस्ट्री छोड़. हाँ, तो ये डिसीजन लिया था कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा और लिटरली मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था. मतलब जितने अटेम्प्ट दिए हैं मैंने अभी तक भी नहीं हिस्ट्री पढ़ा. मैंने बस रीड किया है जानने के पर्पज से, बट एज अ मतलब ये एग्जाम पर्पज से मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है. सो मैंने स्टार्ट किया. मैंने फिर एक ऑनलाइन कोचिंग ली. मैं सोचा घर पे पढ़ लूंगा ऑफलाइन की जगह. तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली अन अकेडमी से. फिर एक सर थे, मैंने उस पर स्टिक रहा. मैं एक्चुअली डिफरेंट टीचर पे भी नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ना तो मुझे ही है और नोट्स भी मुझे ही बनाने हैं. तो जो एक टीचर थे उनसे सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए मैंने एक्चुअली, और उससे मैंने नोट्स बनाए एक बार में. 4 महीने लगे थे मुझे पूरे सिलेबस कंप्लीट करने में सीडीएस का रिटन का, जिसमें इंक्लूड था सबसे पहले तो साइंस था. आई गिव इंपॉर्टेंस टू साइंस. मतलब साइंस को मैंने काफी इंपॉर्टेंस दी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं. देन अकॉर्डिंग टू माय दिस कंफर्टेबिलिटी, तो मैं उसके बाद ज्योग्राफी में गया. ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो इजी भी है. साइंस और ज्योग्राफी काफी इजी है. अगर दो कर लोगे तो आराम से हो सकता है उससे, पिछले टाइम से. और फिर एज अ बैकअप मैंने पॉलिटिक्स कर लिया था और मेरे इकोनॉमिक्स तो था 40. तो 4 सब्जेक्ट हो गए थे. और करंट अफेयर मैं डेली करता था. मतलब अन अकेडमी मैम थी, ये प्राची मैम है क्लासेस जो यूट्यूब पे आता है.
वो मैं करंट अफेयर डेली करता था विद नोट्स। मतलब मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी करंट अफेयर की, और एक कंबाइंड नोटबुक बनाई थी जिसमें 5 सब्जेक्ट थे, 5 या 4 सब्जेक्ट थे जीएस की, तो 2 नोटबुक थी। तो सिलेबस कंप्लीट किया, सीए किया, और ये 4 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट कर लिए मैंने। तो बट देन आई गेव माय नेक्स्ट अटेम्प्ट इन 2024 वन सीडीएस, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू। तो मैं समझ गया था, बट क्योंकि एग्जाम था 14 अप्रैल को 2024 को, और मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था 1 अप्रैल को। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हुआ था, मैं जान पाया था कि सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, साइंस में ये सारी चीजें हैं, बट मैं रिवीजन नहीं कर पाया था। तो मुझे, बट मैं दुखी नहीं हुआ था कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट मैं समझ गया था कि what was the reason I was not clear. So next again what I did, मैं सर मैंने ना रिपीटेशन के साथ रिवीजन किया। मतलब जैसे एक बार साइंस खत्म हो गया, मैंने उसके अगले दिन ही फिर से साइंस स्टार्ट किया है, फिर अब उसके अगले दिन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। मैंने कम से कम उनके जो 4 महीने का गैप था टू, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेकंड अटेम्प्ट में 5.5 महीने का गैप होता है, कम होता है। तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा रिपीटेशन और बहुत ज्यादा रिवीजन किया था, और सिर्फ रिवीजन ही किया था जीएस का, करंट अफेयर का। तो दैट्स व्हाई फिर अगला अटेम्प्ट हुआ तो मेरा ओटीए क्लियर हो गया था। और सर आई आल्सो मेक अ डिसीजन कि मैं मैथ्स थोड़ा साइड रखूंगा इस बार के लिए, क्योंकि पहला मैं सोचा कि पहले मैं मतलब स्टडी में वीक था थोड़ा सा, मैंने सोचा पहले मैं ओटीए क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं अगर मैथ्स को साथ में लेके चलूंगा और जीएस और मैथ्स को साथ में लेके चलूंगा, वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं मैथ सब्जेक्ट मैंने ली थी, बट मतलब स्ट्रांग नहीं है मेरा मैथ्स। तो मैंने डिसाइड किया मैथ्स अभी के लिए साइड रखता हूँ, अभी सिर्फ ओटी पे फोकस करता हूँ, जीएस और इंग्लिश कर लेता हूँ। मेरा इंग्लिश भी वीक था एक्चुअली, मैं सही बताऊँ तो मेरा इंग्लिश भी इतना स्ट्रांग नहीं था, और मैंने ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं किए थे इंग्लिश में भी। बट स्टिल मतलब मुझे प्रिपरेशन तो फुल्ली करनी पड़ी थी, सोच के दोनों को लेके। तब जाके मेरा 2024 फुल सीडीएस क्लियर हुआ था, वो भी फॉर ओटीए। ओके, एंड बट आई गॉट स्क्रीन आउट फॉर दैट थिंग फ्रॉम भोपाल, 22 भोपाल। वो मेरा होल टोटल एसएसबी का थर्ड अटेम्प्ट होगा, इंक्लूडिंग फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे एफकेट के। दिस इज आई एम टेलिंग अबाउट सीडीएस फर्स्ट। एंड फिर जो नेक्स्ट क्लियर हुआ था जिससे मैं रिकमेंड हुआ दिस, एंड विद दैट सीडीएस के साथ मैं एफकेट भी दे रहा था, क्योंकि पहली अटेम्प्ट मैंने क्लियर कर लिया था ना, तो एफकेट में मुझे प्रिपरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं एफकेट भी दे रहा था और उसके एसएसबी भी दे रहा था। तो फर्स्ट एसएसबी जो मैंने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फेस की थी, वो मैंने कॉलेज के बाद ही की थी 2023 नवंबर में। आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, नवंबर 15 में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था 3FSB गांधीनगर से। तो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नेक्स्ट टाइम मतलब मैंने जो 5 दिन देखे ना कि क्या क्या होता है उसमें। फर्स्ट एसएसबी तो मैं बिना प्रिपरेशन के गया था, मतलब राइट, मतलब मैं कॉलेज से निकला, मैंने जॉब की 4 महीने की, और 4 महीने का जॉब छोड़ के मैंने एसएसबी में गया बिना बिना प्रिपरेशन की, ड्रॉ चला गया था। मैं अक्सर कहूंगा ये गलती थी एक्चुअली मेरी, मेरी आई एक्सेप्ट दैट ये गलती थी जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने बिना प्रिपरेशन के मतलब अटेम्प्ट कर लिया था। इट्स लाइक आई एम मिसिंग माय गोल्डन चांस। तो बट मैंने फिर नोटिस किया कि क्या क्या होता है इसमें, और मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया कि यस मैं कर सकता हूँ एक्चुअली, अगर मैं प्रिपेयर करूँ ढंग से तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड हो सकता हूँ। रिटर्न क्लियर हो गया मेरे, तो प्रिपेयर ढंग से करूँ तो रिकमेंड हो सकता है। बट स्टिल मेरी गलती थी कि मेरा कम्युनिकेशन इतना, मतलब एज ए मैं साय और इंट्रोवर्ट बच्चा हूँ, मतलब कॉलेज में बात करता था बट प्रोफेशनल लेवल पे नहीं बात करता था, मतलब हिंदी में बात करता था और कैजुअली इनफॉर्मल वे बात करता था। बट इन एसएसबी थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है, और फिर इन प्रोफेशनल वे बात करनी पड़ती है जीडी और उसमें। ओके okay. स्वदेश, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि आपने कहा कि आप अपने पहले अटेम्प्ट में प्रिपेयर्ड नहीं थे, सो लाइक हाँ यस सर। जैसे मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का कि कोचिंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपकी ओरिजिनलिटी कम हो जाती है या बढ़ जाती है, आपकी इस पे क्या राय है? लाइक हाउ कोचिंग ग्रूम्स अ पर्सन और अ कैंडिडेट? डेफिनेटली सर, मैं ये बोलूंगा कि थैंक यू, आपने पॉइंट आउट किया कि कोचिंग नहीं सर, वो बंदे की ओरिजिनलिटी बंदे पे डिपेंड करेगी, मतलब जो कैंडिडेट की ओरिजिनलिटी है वो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगी। कोचिंग आपको, अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो कर लोगे, बट कोचिंग आपको ग्रूम जरूर कर लेगी। आपको बहुत चीजें पता चलेगा, आपको बहुत चीजें पता चलेगा आपके बारे में भी, और आप में क्या कमियां हैं, फिर आपको सुधारने का भी कोचिंग में हेल्प मिल जाएगी जब आप बच्चों से सराउंड होगे। हाँ, बच्चों सराउंड होते, कॉम्पिटेंट एनवायरनमेंट जो मिलता है वो काफी हेल्प करता है। हाँ, और आप जैसे सर हो, जैसे अभिषेक सर हो और जीके सर है, कमल सर हैं, तो डेफिनेटली मेरे को तो बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अगर मैं किसी को गाइड करूंगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जा रहा है, डेफिनेटली कोचिंग लेके जाओ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ना मिस मत करना, डेफिनेटली कोचिंग, मेरा ये राय रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि इस टाइम सर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अगर ये चीज मैं 10 साल पहले 15 साल पहले बोलता ना, तो बिना कोचिंग के हो जाता सर। बट इस टाइम जो
कैंडिडेट आते हैं ना, वो एवरीवन इज कोच्ड एक्चुअली में, वो बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं, कोच करके आते हैं। तो इसलिए मैं 4 बार स्क्रीन आउट भी हुआ एक्चुअली में, यही मैं बताने वाला था फर्दर कि मैं 4 बार स्क्रीन आउट हो गया हूँ। रीजन ये था कि मैंने घर में प्रिपेयर किया था, मैं अकेले ही प्रिपेयर कर रहा था। तो कोचिंग का माहौल में जैसे बच्चे, जैसे एसएसबी में बच्चे रियलिटी में होते हैं, साइड में बैठे होते हैं नरेशन के टाइम, जीडी के टाइम, वो मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था। बट कोचिंग ने हेल्प की मेरी ये एनवायरनमेंट वो करने में, मतलब फेस टू फेस लाने में, ये एनवायरनमेंट कैसा था और मैं कैसा परफॉर्म कर रहा था उसमें। अगर बात और करें, अभिषेक सर ने तो बहुत ज्यादा हेल्प किया। हाँ, लाइक सबसे पहले हम यस अभिषेक सर ने तो स्क्रीनिंग की बात कर लेते हैं। यस सर। स्क्रीनिंग का आपका बेसिक से बताइएगा कि लाइक क्या गलतियां पहले करते थे, एंड यहाँ पर आपकी कैसे ग्रूमिंग की उस स्क्रीनिंग वाले पार्ट में, तो और कैसे आपको लगता है कि लाइक और अलग आपको अपने आप को महसूस किया आपने दूसरों से वहां पे जाके परफॉर्म करते टाइम। सर स्क्रीन की बात, यस सर। सर स्क्रीन का मैं ये बोलूंगा, जो फर्स्ट मैं ट्राई कर रहा था, सो आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज बाय माय ओन, बट मीन्स एक जैसे कि स्टोरी लिख रहा था और खुद से नरेट कर रहा था, बट आई वाज नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस ऑन माय स्टोरी। मतलब मुझे अपनी स्टोरी पे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स में कि ये स्टोरी सही है या गलत है, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो बट स्टिल मैं गया और फिर मैंने मतलब स्टोरी में अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने ना 4 अटेम्प्ट में वो स्टोरी ढंग से लिख नहीं पाई एक्चुअली में। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं अनअवेयर था, मतलब माइंड में वो थी नहीं बातें कि स्टोरी कैसे लिखनी है, ऐसी लिखनी है, वैसे लिखनी है। जैसे सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट मुझे पता चला कहीं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे और फिर बुक्स में कि ऐसे ऐसे स्टोरी लिखनी चाहिए, ऐसे ऐसे स्टोरी लिखनी चाहिए। तो उसके चक्कर में मेरा माइंड मतलब फिल हो गया था कि मतलब मैसअप हो गया था माइंड में कैसी स्टोरी लिखनी है। उसके चक्कर में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी मतलब मुझे लिखनी है। तो पहले 4 अटेम्प्ट में ये हुआ था, बट कोचिंग में मुझे अभिषेक सर ने काफी हेल्प कराई कि जो मैं स्टोरी लिख रहा था वो सही अच्छी तरह से स्टोरी लिख रहा हूँ। तो मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आया था, ओके स्टोरी पार्ट तो मेरा सही है, मैं नरेशन पार्ट में देख लेता हूँ। फिर मैंने जीडी पार्ट मतलब कोचिंग में जीडी पार्ट देखा, नरेशन किया। नरेशन मैं मानता हूँ कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा नहीं किया होगा, बट एटीट्यूड था कि मुझे सुधारना है क्योंकि मुझे करना है। तो एक एटीट्यूड था, मुझे खुद करना है, स्क्रीन इन होना है और रिकमेंड भी होना है, तो मुझे सुधारना पड़ेगा। मैंने गलती एक्सेप्ट की कि मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, नरेशन मतलब थोड़ा वीक है, मुझे सुधारना ही है। तो मैंने उसका मतलब कोचिंग में भी प्रिपरेशन की, और जब हॉस्टल जाता था तो वहां भी मैं करता था एक्चुअली प्रिपरेशन खुद से अपने आप को रिकॉर्ड करके। नरेशन सुधारना है तभी जाके स्क्रीन हो पाऊंगा, वरना तो मैं स्क्रीन ही नहीं हो पाऊंगा। गुड गुड गुड। तो फिर नरेशन मैंने प्रैक्टिस की, नरेशन के बाद जीडी भी है। मतलब ये तीनों लाइन में मेरे लिए फेस ऑफ मतलब ये चैलेंज ही थी एक्चुअली में। ऐसा नहीं है कि मैं किसी इसमें से एक में भी अच्छा था। स्टोरी राइटिंग में भी अंडर कॉन्फिडेंस था, नरेशन में, कम्युनिकेशन में भी अंडर कॉन्फिडेंस था, और जीडी मैंने कभी फेस ऑफ किया नहीं था मतलब रियलिटी में एसएसबी के अलावा। तो सही बताऊं तो पूरा स्क्रीनिंग पार्ट एक्चुअली कोचिंग की वजह से ही हो पाया, और मैं स्क्रीनिंग भी कोचिंग की वजह से हो पाऊँ। तो मैं यही बोलूंगा जो जा रहा है वो प्रैक्टिस करके जाओ, कोचिंग अगर हो सके तो प्रोबेबली स्क्रीन और आगे की भी लेके जाओ एक्चुअली में। तो हैट्स ऑफ टू अभिषेक सर एक्चुअली में, जितना उनने हेल्प किया है मैं क्या बताऊं सर आपको। और जितना कॉन्फिडेंस आपकी वजह से आया मुझ में, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी सर, मैं क्या ही बताऊं। ओके दैट्स ग्रेट। और डिफरेंस सर यही है सर, डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ एक, कि मैंने नोटिस किया था कि हम जब स्टोरी लिखी हमने, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि स्टोरी मैंने अच्छी से लिख दी है, ड्यूएबल है, मतलब वर्केबल है। बट मैंने नोटिस किया कि बच्चे ना, ये मैंने काफी बार सुना भी है कि बच्चे बातें करने लगते हैं। ये बात सही है कि बच्चे सही में बातें करने लगते हैं। उनको पता होता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट टास्क आगे आने वाला है, स्टिल वो उसको माइंड में साइड रख के बातें करने लगते हैं। ये थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे। बट मैंने अपनी स्टोरी सर जो इलाहाबाद बोर्ड में था 14 एसएसबी में, आई गेस 17 और 18 टाइम मैंने रिपीट की होगी बिना किसी से बात करके। 17 और 18 टाइम रिपीट की होगी कंटिन्यूअसली। और लास्ट के 4-5 अटेम्प्ट में सर वो फ्लो आ गया था, जैसे मैं करता रहा, और लास्ट के 4-5 अटेम्प्ट में ना वो फ्लो आ गया था, बिल्कुल ही मतलब क्लीन हो गया था। तो उससे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि अब तो फ्लो आ गया है, अब मैं जाके आग लगा दूंगा आगे। मतलब आई डू वेरी वेल इन दिस नरेशन पार्ट, एटलीस्ट नरेशन पार्ट में तो बहुत अच्छा कर लूंगा। और जीडी में करके आया था, जीडी में कॉन्फिडेंस हो गया था कोचिंग वजह से। तो नरेशन, जब मेरा नरेशन अच्छा हुआ, स्टोरी अच्छी हो गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, नरेशन और अच्छा हुआ, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो इन दोनों के चक्कर में मेरा जीडी पार्ट बहुत अच्छी हो गया था, और मेरी बच्चे बात सुन रहे थे और मैं भी उनकी बात सुन रहा था। मतलब जीडी में ये बात होती है कि आइडियाज पुट करना है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स पुट मत करना, जो डिस्कशन हो रहा है उसके रिलेटेड ही करना, कॉन्ग्रुएंट रहना जो डिस्कशन हो रहा है। तो मैं सुन पहले, फिर कॉन्ट्रीब्यूट किया, फिर उससे एड पॉइंट कर दिया उसी की स्टोरीज में। तो वो कॉन्ग्रुएंट था दूसरे के बच्चे से, एनवायरनमेंट से, इसलिए जीडी पार्ट भी अच्छा था मेरा। दैट्स हाउ आई मीन आई गॉट स्क्रीन इन एक्चुअली।
चलो ये तो स्क्रीनिंग का हो गया, और जो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आयरन गेट था, फाइनली तुमने ब्रेक किया। लेट्स टॉक अबाउट द थ्री Yes, sir. stages of Mansa Vacha and Karmana. Let's start with your Karmana part. How was your GTO first? GTO सर, GTO तो मैं आई वाज हैप्पी एक्चुअली सर, आई वाज लिटरली हैप्पी। मतलब मैं बताऊं सर तो कॉन्फिडेंस था कि सर जीटीओ सर ने ही मुझे ज्यादा रिकमेंड किया होगा देन साइकोलॉजी इंटर्नशिप, क्योंकि जीटीओ का फर्स्ट क्लास जीडी होता है। और कमल सर के जो जीएस क्लासेस थे, और एक मुझे याद है कमल सर ने हमें बोला था कि लेक्चर का आपने एक टॉपिक प्रिपेयर करना, और मैंने वो रिक्की प्रिपेयर किया था, हम्म, और समवॉट रिलेटेड टू जीडी टॉपिक हुई था, और मुझे पॉइंट्स बिल्कुल याद थे और डाटा के साथ याद थे। हम्म, जीडी मैंने प्रिपेयर किया था, मतलब अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस पा लिया था कोचिंग में, मेरे पे डाटा भी था इस टाइम। तो हम्म, मैंने कमल सर से, मतलब कमल सर ने मुझसे बोला था करने के लिए, और कमल सर की जो जीएस क्लास थी, डाटा भी था और मेरा कॉन्फिडेंस भी था। तो बस सर मैंने सही बताऊं, मेरा फर्स्ट टास्क ही बहुत अच्छा गया था जीडी का। हम्म, मतलब जो जीटीओ का फर्स्ट टास्क है ना जीडी, वो बहुत अच्छा गया था। फर्स्ट हाँ, टॉपिक मेरा ये था, हाउ इज इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड। सो मैंने डिफेंस इकोनॉमी और ये सब जो ऐड किया था ना, डिफेंस में कितना बढ़ोतरी हुआ है, एक्सपोर्ट में कितना वो हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन वो कितना हुआ है, हेल्प कितनी की है इंडिया ने, हम्म, इसकी वजह से सर थ्रू द ट्रू पॉइंट थे और डाटा के साथ पॉइंट थी। हम्म, तो और बच्चे मुझे सुन भी रहे थे एक्चुअली, बच्चे जो मैं पॉइंट्स दे रहा था वो बच्चे सुन रहे थे मुझे, हम्म, क्योंकि मेरे पास हैवी वेट डाटा था, रियल डाटा था। हम्म, तो उसकी वजह से मेरा फर्स्ट जीडी बहुत अच्छा गया था, और उस तरफ से मैंने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था। सेकंड जीडी वो तो थोड़ा वैसा हो गया था, पर्सनली लेवल पे अच्छा हुआ था। तो हम्म, उसमें मुझे थी, मतलब जो मेरे वैल्यूज थे वो पुट करने थे सेकंड जीडी में। हम्म। बट आई हैव बिलीव कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, आई हैव अ बिलीव, मतलब मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा कैंडिडेट हूँ। तो मैंने अच्छा किया था सेकंड जीडी में भी। Okay, that's great. How was your GP then? जीपी, यस सर। सो कोचिंग में आई वाज विद कमल सर, वाज प्रैक्टिसिंग, मतलब ही वाज प्रैक्टिस कर रहे थे जीपी। So I was not able to finish GP. Means we have practiced 2 3 times in the coaching, but I was not able to finish this GP matlab, solution part in the coaching also, and then in the this real SSB also, in Allahabad also. I was not able to finish my this solution. Mm-hmm. I was able to finish, but story जो main aim था, I was not able to write that. 10 मिनट is, लगता है 10 मिनट बहुत ज्यादा है, बट ज्यादा नहीं होता, वो कब चला जाता है पता नहीं चलता एक्चुअली में। और मैं उस टाइम सर मैं अपनी राइटिंग की भी फिक्र नहीं कर रहा था। मैंने कोचिंग में पता चल गया था अगर मैं राइटिंग का देखूंगा तो फिर वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। कोचिंग से ये मैंने थोड़ी 2 3 बातें नोटिस की थी कि कैसे लिखना है, सर ने बिल्कुल बता दिया था, अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरीके से सोल्यूशन लिखना है। उसकी वजह से थोड़ा सोल्यूशन लंबा हो गया था, वरना तो मैं पहले 2 या 3 पैरा लिख पाता था। तो सर कमल सर ने जिस तरीके से बताया था कि ऐसे लिखोगे, टाइम को ऐसे इंक्लूड करोगे, और दिमाग में रास्ता वे और मैन को याद रखोगे कि कितने मैन है कितने रिसोर्सेज हैं, इस तरीके से दिमाग में रखोगे तो उस स्ट्रक्चर की वजह से मैं 4 पैराग्राफ लिख लिया था मैंने, 4 और 4.5 लिख लिया था मैंने। ठीक ठीक। और वो हो गया था। यस सर। जीडी का कॉमन नरेशन आपने दिया था या किसी और ने? कॉमन सॉल्यूशन। जीपी का नो नो सर, जीपी का कॉमन सोल्यूशन हमारा एक पीआर था, उनने दिया था एक्चुअली में, अच्छा जिनकी रैंक अभी ऑल इंडिया रैंक 34 आई है, 34 आई है, उनने दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ दैट्स। सर। तो एस तो खैर जीपी में हमेशा रहता है, लाइक डीएसटी का प्रॉब्लम बहुत देखा गया। तो क्या आपने डीएसटी का फॉलो किया था? दैट डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम तो यूजली मिस होते हैं उसमें अक्सर। सर दैट इज द पॉइंट एक्चुअली सर, ट्रूली बताऊं मैंने ही पॉइंट आउट किया था कि सर हमें डिस्टेंस स्पीड और ये ट्रैवलिंग ये भी कैलकुलेट करना है। बाकी सब मतलब ऑल द कैंडिडेट्स वर डिस्कशन की हमें ये करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, इस तरीके से करेंगे। बट फिर मैंने पॉइंट आउट किया कि सर हमें अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस हमें स्पीड कैलकुलेट करना है और टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो वो मेरे पॉइंट आउट करने से बच्चे मेरी तरफ फोकस हो गया था, और जब मैंने पॉइंट आउट किया ना कि डिस्टेंस स्पीड ये होना चाहिए, करना चाहिए हमें कैलकुलेट, तो मैंने अपना पॉइंट भी आगे रख दिया कि डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, स्पीड मतलब एज 60 है, तो 15 मिनट में इतना डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। इस वजह से तो मैंने मतलब डिस्टेंस साइंस को तो मैंने पॉइंट आउट किया था एक्चुअली में। ये ये काफी हेल्पफुल था जो सर ने मुझे बताया था कुछ में। हाँ ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लाइक बच्चे वो सॉल्यूशंस तो लिखते हैं बट उसमें ये जो कोर छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें हैं उसको भूल जाते हैं बार बार। हाँ। से जो एक्शंस वो ले रहे यस सर। हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम, उसमें भी कई बार वो माइनर चीजों को मिस कर देते हैं। हाँ वही। खैर, हाउ वाज योर पीजीटी देन? पीजीटी एक्चुअली सर, पीजीटी इन द सेंस कि फर्स्ट लेवल तो बहुत इजी होता है, और मेरे में ग्रुप में ना जैसे कि 2 पीआर थे, दो प्रीवियस रिकमेंडेड थे, और 2 3 थे जो हाईली कोर्स बंदे थे, मेरे साइड साइड में बैठे हुए थे। तो फर्स्ट लेवल इजी होता है, फट्टा रखा और चले गए, मैं तो कुछ कर नहीं पाया उसमें।
सेकंड लेवल गया, बच्चों का मतलब इतना दिमाग तेज होता है ना सर, कि इतने कोच्ड होते हैं ना, और इतना फेस कर लेते हैं ना वो लोग पीजीटी और ये स्ट्रक्चर्स, देखते ही वो सोल्यूशन दे देते हैं कि ऐसे ऐसे वो होगा। अब मैं सर, मेरी बॉडी स्मॉल है, मेरी आवाज थोड़ी थिन सी है, और फिर बच्चे वो मेरे जो साइड में थे वो हाइटेड और बल्कि बंदे थे, वो आगे आगे फट्टा ले गए और वो सारी चीज ले गए, मैं पीछे रह गया। बट ऐसे सेकंड भी क्लियर हुआ और थर्ड भी क्लियर हुआ, बट व्हाट हैपेंड सर, जो आंसर दे रहे थे ना, मुझे लगता है सर उन्हें पता था सर, उन्हें ना स्ट्रक्चर देखे हुए थे सेकंड और थर्ड। बट फोर्थ में वो बच्चे अटक गए सबके सर, मतलब फोर्थ में ना दो तीन बच्चे बोल रहे हैं जो पीआर थे बस, और फिर आज सोल्यूशन निकल नहीं रहे थे और किसी का। बट फोर्थ में सर मैंने पॉइंट आउट कर लिया एक्चुअली में, कि मैंने लर्न किया पहले तो कि फर्स्ट फर्स्ट में सेकंड थर्ड में इन्हें क्या पोल्यूशन कैसे मतलब फट्टा बल्ली यूज किया। फोर्थ में मेरी वेट कम था, मेरी हाइट स्मॉल थी, तो मैं टास्क के बीच से चला गया, बीच में चला गया, और फिर जब मैं बीच में गया तो सर मुझे सब दिखने लगा अच्छी तरह से कि कैसे कैसे सोल्यूशन पढ़ सकता हूँ। तो मैंने फोर्थ में एक्चुअली 3 सोल्यूशन दिए मैंने, और जो उन्होंने एक्सेप्ट भी किए थे, 3 सोल्यूशन दिए थे, एक्सेप्ट किए थे, और 4th सोल्यूशन एक्चुअली उसके वजह से क्लियर भी हो गया था। सो सर व्हाट हैपेंड कि पीजीटी में ना एक्चुअली साइन अप करना पड़ेगा, मतलब जो पहला दिन होता है ना, मुझे लगता है कि सर आपको किसी ना किसी टास्क में शाइन आउट करना पड़ेगा, जीटीए की नजर में आना पड़ेगा, कि वो फिर नेक्स्ट डे आपको थोड़े और कंसीडर करे, आपको और वॉच आउट करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो आप जीडी अच्छा कर लो, और जीपी का सोल्यूशन या जीपी का जीडी बहुत अच्छा कर लो, क्योंकि पीजीटी में मैं बोलूंगा सर चांस कम मिलता है, मतलब बच्चे ये होते हैं फटाफट, दो तीन चीजें होती हैं, रोप होते हैं, चांस कम मिलता है, बड़ी मुश्किल से छीनना पड़ता है चांस से, बताऊं तो मैं। या तो आपको तुक्के से मिल जाए तो मिल जाए, बट जीडी अच्छा कर लो तो ही हो पाएगा, पीजीटी में बहुत मुश्किल से चांस मिलेगा, अगर आपके पास हैवी नॉलेज है, हैवी प्रैक्टिस है तो कर लोगे आप। बट जब मैं बीच में गया और मैंने सोल्यूशन दिए चला के बोला, तो मैं उसी वक्त आई थिंक मुझे ये लगता है कि उसी वक्त मैं स्टैंड आउट किया था, क्योंकि सारा फोकस मेरी तरफ ही था, क्योंकि मैं मिडिल ऑफ द उस टास्क में था, और मैंने 3 सोल्यूशन लगातार दिए थे, और मतलब इन द सेंस कि जो लेवल 4 होता है, जो टफ लेवल होता है, सबसे टफेस्ट लेवल होता है जीटी का, वो मैंने ही क्लियर कराया था, और बच्चों को तो आइडिया आ ही नहीं रहे थे उसमें। बहुत सही और बात। एक पीआर थे उनका, मतलब हम मिल के कराया था, मतलब तो दैट वाज द पॉइंट एक्चुअली, मैं दैट वाज द मोमेंट कि जीटीओ उसने नहीं बनाया होगा, जीटीओ मेरा उसने ही बनाया होगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, क्या क्या आपका टॉपिक था लेक्चर का? मेरा टॉपिक तो सर रोडवेज इन इंडिया था, रोडवेज इन इंडिया, और एक था यूथ इन पॉलिटिक्स, और एक था आई थिंक न्यूक्लियर डिटरेंस था एक। ओके। और जो फोर्थ टॉपिक था, दैट मैं याद नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट में था, वो तो थोड़ा अजीब सा था, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था, तो मैंने याद नहीं था वो। तुमने तो किस मैंने, हाँ सर लेक्चर में बता, हाँ सर बताइए। तुमने किस पे बोला था? अच्छा, मैं सर रोडवेज इन इंडिया बोला था एक्चुअली में, ओके। क्योंकि मैंने पहले क्योंकि यूथ इन पॉलिटिक्स, एक्चुअली पॉलिटिक्स मुझे पसंद ही नहीं बिल्कुल भी, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी कम है वैसे भी, और पॉलिटिक्स का बोलना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड न्यूक्लियर में बोल सकता था, पर उसमें अगर मैं एग्जैक्ट डाटा देता तो अच्छा रहता, बट मेरे पे वो था नहीं, कम डाटा था मतलब न्यूक्लियर के बारे में, पर मैं बोल जरूर सकता था। तो मैंने सोचा कि सिंपल डाटा लेता हूँ, मतलब सिंपल टॉपिक लेता हूँ, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसमें मैं बीच में ऐसा नहीं हो पाएगा कि 3 मिनट के बीच में रुक के और खड़ा रह जाऊं मैं उधर, कि मैं आगे एड ऑन अपनी तरफ से बिना सोच के करूँ तो भी एड ऑन कर लूंगा मैं। तो सिंपल टॉपिक लिया मैंने और प्रिपेयर किया मैंने, और डाटा था मेरे पास कि हम वी इंडिया हैव सेकंड लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट हाईवेज इन द वर्ल्ड, और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जो सागरमाला प्रोजेक्ट, मतलब पोर्ट्स को और रेलवेज को एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए वो किया है, गोल्डन ट्रायंगुलर है वो सब। तो ये एग्जैक्ट डाटा थे मेरे पास, और मैंने फिर पॉइंट आउट किया कि इसका रोडवेज इंडिया का, तो ये क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेड बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, और फिर डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो मतलब इजीली डाटा स्ट्रक्चर, ये सर लेक्चर ना एक्चुअली आपको ना ऐसा करना पड़ेगा ना, आपको सर कनेक्टेड रहना पड़ेगा सर, न्यूज से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, और जियो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, और रीडिंग जरूर करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर जरूर रीड करना पड़ेगा, उससे आपको जरूर पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स और ग्रेट। मैं सिर्फ करंट अफेयर डेली लेता था ना, उसने हेल्प की थी एक्चुअली इसमें लेक्चर में, मैं करंट अफेयर डेली नोट करता था, तो मुझे पॉइंट रिमेम्बर रह गए थे उसमें। और बट स्टिल मैं ये बोलूंगा, डाटा था मेरे पे, बट डर बहुत था मेरे अंदर एक्चुअली। डाटा था मेरे पे पर डर बहुत था, नॉलेज था पर डर था आगे खड़े होने का। चलो, तो मुझे याद है कि लेक्चरेट में, हाँ, कोचिंग में जो मैंने, जब कोचिंग में पहली बार गया था तो दिल धक धक कर रहा था बहुत तेज से, धक 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 धक, बट स्टिल मैंने सर फेस ऑफ किया एक्चुअली में, स्टिल मैंने फेस ऑफ किया कि करना तो है, डेफिनेटली करना है, ऐसा तो नहीं है कि भाग जाऊंगा मैं, डेफिनेटली करना है। तो मैं कोचिंग में सबसे पहले मैंने यहाँ रेस किया था कि सर आई विल गिव द फर्स्ट लेक्चर,
अभिषेक सर थे उस टाइम जब लेक्चर ले रहे थे वो। और फिर मैंने डिसाइड किया कि प्रिपेयर नहीं करूंगा, अनप्रिपेयर इम्प्रॉम्प्टी करूंगा, कि ऑन द टेबल चिट लूंगा, टॉपिक्स देखूंगा, जैसा बोलूं डजेंट मैटर, प्रैक्टिस मतलब कोचिंग इसीलिए ही है, प्रैक्टिस कर लूं, शर्म तो कुछ नहीं थी मेरे को। मैंने चिट ली, मैंने प्रिपेयर किया, जैसा बोला बोला, बट मेरा डर कम हो गया उसकी वजह से। फिर मैंने घर जाके फिर से रिकॉर्ड किया अपने आप को। जब जैसे जैसे डर जाता गया ना कोचिंग की वजह से, तो मैंने फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि अब तो मैं कर लूंगा, डेफिनेटली कर लूंगा, मेरे पे नॉलेज है और कॉन्फिडेंस भी है, मैं पक्का ही कर लूंगा, ये बिलीव था मेरे अंदर सर, सेल्फ बिलीव आ गया था उसकी वजह से। तो ओके, मैंने सर मेरे लेक्चर भी स्मूथ गया था अच्छी तरह से। चलो बहुत सही है। अब चलो बात करते हैं तुम्हारा इंटरव्यू का। हाउ वाज योर इंटरव्यू, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कोई ट्रिकी क्वेश्चन, कैसे तुम्हारा जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन था वो उधर हेल्प किया, ऐसा वाला? सर इंटरव्यू सर तो मतलब हमारे मेरा इंटरव्यू सर प्रेजेंट सर ने लिया था, 14 एसएसबी बोर्ड के प्रेजेंट सर थे, ब्रिगेडियर निश्चित सूद नाम था उनका। और तो जैसे हम रूम में बैठे हुए थे और दो तीन बच्चे आ रहे थे इंटरव्यू देके, हम्म। पहला प्रोस्पेक्टिव बनता जा रहा था कि प्रेजेंट सर कैसे हैं, तो सब यही बोल रहे थे प्रेजेंट सर मतलब एक शेर है एक्चुअली। हम्म। वो ऐसे मीठी छुरी नहीं है, वो सामने ऑन द पॉइंट बोल देंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, और डांट भी देंगे। और डेफिनेटली सर इंटरव्यू सर ने मुझे डांटा होगा, मतलब 3-4 बार तो डांटा होगा, बिल्कुल रगड़ दिया होगा सर एक्चुअली। क्यों, किस? कि हाँ सर, ये पता है क्या होता है, जो कोचिंग में मेरा सर जो कर्नल साहब ने इंटरव्यू लिया था, सेम ऑलमोस्ट उससे लाइन था मेरा इंटरव्यू। हम्म। तो रीजन था कि एज अ आर्मी ब्रेट, मैं मतलब एनडीए मैंने नहीं किया एज अ आर्मी ब्रेट, मैं कंटोनमेंट एरिया में था पूरी जिंदगी। हम्म। बट मैंने एनडीए अटेम्प्ट नहीं दिया, कि मेरे फादर ने कभी बोला भी नहीं मुझसे एनडीए अटेम्प्ट देने का। ना मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, मतलब मैं मतलब एपीएस में पढ़ा था, और हर एपीएस में एनसीसी होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल में एनसीसी होता है हर एपीएस में। ना हम्म। मैंने एनडीए कभी अटेम्प्ट दिया, ना मैंने एनसीसी दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम्म। तो सर उधर ही अटक गए थे कि मैं मान ही नहीं सकता, हम्म। आपके फादर आर्मर्ड कोप में, वो भी फाइटिंग, एक फाइटिंग कोप है, इंपॉर्टेंट कोप है, और आपने कभी एनडीए और आर्मी ज्वाइन करने का मतलब 10 से लेके 12 तक कॉलेज तक आपका कोई मन ही नहीं रहा, कि आर्मी कैसे नहीं हो सकता कि आपका आर्मी ज्वाइन करने का मन नहीं रहा। तो वो मुझे उसके लेके अटक गए थे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम्म। तो मैं उनको मतलब रीजंस पुट आउट किए, सर मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, 10 तक तो आई वाज नॉट अवेयर व्हाट आई हैव टू डू, मतलब क्या करना है, आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन माय बोर्ड्स एंड एग्जाम्स एंड सब्जेक्ट्स। और हम्म। 12th में तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, तो एनडीए वाज आउट ऑफ ऑप्शन, इस सब्जेक्ट नहीं है और प्रिपेयर करूंगा तो उसके चक्कर में मेरे 12th के परसेंटेज लो हो जाएंगे, और हम्म। फर्दर ऑन फिर कॉलेज नहीं मिल पाएगा और कुछ आगे नहीं हो पाएगा। हम्म। तो इसलिए मैंने फिर एनडीए अटेम्प्ट नहीं किया। एनसीसी सर मैं ये बोलूँ कि मैंने बताया था कि मतलब फ्रीक्वेंट पोस्टिंग होती रहती थी पापा की, वहाँ अमृतसर से पठानकोट, अहमदनगर, रुड़की, ग्वालियर, फिर हम्म। अगेन अहमदनगर, पठानकोट, तो फ्रीक्वेंट 2 साल में पोस्टिंग होती रहती थी। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में एनसीसी मिस आउट ही हो गया, मतलब मैंने कभी मतलब ये नहीं बोला फोकस, बट मैंने बोला कि इट्स रेदर गुड टू नॉट टेक एनसीसी जब फ्रीक्वेंट पोस्टिंग होती रहती है। तभी भी सर बोले कि ये तो एक एक्सक्यूज हो गया, एक रियल पॉइंट नहीं है। बट स्टिल मैंने बोला सर दैट इज द ओनली रीजन, मतलब दिस इज ट्रू, दैट इज द ओनली रीजन आई हैव। तो उन्होंने बोला ओके, आई एक्सेप्ट दैट रीजन। ओके, ये सो पॉइंट था। मेरा एक यहाँ हाँ पे सर। सवाल है, बिकॉज आप जब एंटर किए रूम में, आपको पता है प्रेसिडेंट है, तो एक जिम्मेदारी अपने ऊपर भी, एक इंटरव्यू अच्छा करना है हमें, है ना, खुद से भी है। और जब पता है कि एक ऐसा इंसान बैठा है जो कि इतने कठिन सवाल पूछने वाले हैं, डांट भी सकते हैं, है ना, तो कभी भी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है हाँ है ना। अब ऐसे में हाँ सर। इंटरव्यू से आने के बाद क्या रहा, है ना। और मुझे ये भी बताइए, कहीं बीच का ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि यार मैंने शायद ये पॉइंट मारा था, शायद सर इंप्रेस हुए होंगे या उनको कुछ अच्छा गया होगा, लाइक ऐसा कुछ हुआ? या बाद में आपको फिर लगा कि यार मैं क्या हाँ करके आ गया, मेरा पूरा अटेम्प्ट चला गया, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, ये सर एक्चुअली मैं दोनों इंसिडेंट बताऊंगा, दोनों ही चीज हुई थी। बीच में एक पॉइंट जरूर था जब मुझे लगा इंटरव्यू से मेरे इंप्रेस हुए थे। बट ओवरऑल मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा था नहीं, मतलब जो वो था ना मेरे माइंड में जो सेट बन गई थी कि इंटरव्यू इतना अच्छा गया नहीं, चांसेस लो हैं, क्योंकि सर ने बहुत बार डांटा होगा मुझे, और बहुत बार सही में डांटा होगा, जोर से ही बोला होगा। तो व्हाट हैपेंड सर कि बच्चे बताए, और मेरा इंटरव्यू हुआ था जीटीओ के सेकंड डे पे, ऑन द 4th डे। जीटीओ जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, व्हाइट शॉर्ट्स पहने हुए थे, टी शर्ट्स पहनी हुई थी, और उसी वक्त डटी भी था मैं थोड़ा। तो उसी वक्त उसके बाद ही मेरा इंटरव्यू था, तो मैं मतलब वेल ग्रूम नहीं था, उसके वजह से थोड़ा डर और था कि इंटरव्यू सर मतलब कैसे देखेंगे मुझे। ग्रूम नहीं था, हेयर भी थोड़े मैसअप थे। मैं वॉशरूम गया, थोड़ा मुंह फूल धोया, अच्छा हुआ मेरे पास हैंकी था, मीन्स हैंकी कैरी कर रहा था मैं, मुंह धोया, बाल भी सेट किए थोड़े से, थोड़ा ग्रूम लगा, कपड़े भी थोड़े साफ किए। सो मैं एंटर किया, सब उधर ही बैठे हुए थे, सिविल ड्रेस में थे एक्चुअली में। बट उन्होंने बुलाया मुझे, कम इन स्वदेश। तो पहले तो उन्होंने फिर मतलब क्या बोलते हैं इसे, जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, उन्होंने जीटीए के बारे में पूछा, हाउ वाज द जीटीए,
मतलब आज के टास्क क्या थे। उन्होंने पूछा कि ये आईओ था, मैंने बोला आईओ था सर, कमांड टास्क था। उन्होंने बोला कितने आईओ किए, बोला रहा है आई डिड ऑल एंड एक्स्ट्रा आल्सो, आई डिड 11 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो वो थोड़े खुश हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि ट्रैवलिंग वेयर डू यू स्टे, मैंने बोला सर आई एम करंटली लिविंग इन ग्वालियर, हाउ डू यू ट्रैवल फ्रॉम ग्वालियर टू दिस। और सर ये मैं प्रिपेयर कर गया था एक्चुअली में। सो इंटरव्यू इज अ थिंग जिसका आप प्रिपेयर कर सकते हो, सही बताऊं तो मैं सर। जो आपने पीके लिया था मेरा सर, आपने क्वेश्चंस भी बताए थे कि पीके से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, ये सब। तो इंटरव्यू का की पॉइंट है कि प्रिपेयर कर सकते हो डेफिनेटली। इंटरव्यू डेफिनेटली आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, डर होगा पर प्रिपेयर हो सकता है इंटरव्यू। ये तो तो जैसे उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू ट्रैवल फ्रॉम ग्वालियर टू इलाहाबाद, मैंने बोला सर ये ट्रेन, मुझे ट्रेन नंबर याद था, डिस्टेंस याद था, टाइम याद था। तो उनने बीच में ये भी बोला था कि मैंने ये बोला कि आई ट्रैवल इन जनरल ट्रेन, आई एक्चुअली ट्रैवल इन जनरल ट्रेन एक्चुअली। सो उन्होंने बोला था कि डिड यू टॉक टू समवन, मतलब इन योर कोच। मैंने बोला सर यस देवर अंकल एंड आंटीज, बट आई डिड नॉट टॉक मच। मैंने पूछा कि व्हाट इज द टाइम एंड वेयर आर यू गोइंग, दे वर आल्सो ट्रैवलिंग टू इलाहाबाद आल्सो। सिर्फ मैंने बोला आफ्टर दैट आई वेंट टू स्लीप। तो उन्होंने बोला कि इतने सारे लोग थे, आपने किसी से बात ही नहीं की, बाय दैट सो आप शाय हो, इंट्रोवर्ट हो। मैंने बोला नो सर, मींस ऐसा नहीं है, शायद इंट्रोवर्ट नहीं है, मैं बात कर सकता था। तो मैंने थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, बट मैं टायर था। मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे मेरा मुझे अच्छी तरह से जाना है, तो मैंने स्लीप ले लिया पहले अच्छी तरह से। और वो ट्रेन जनरल थी, तो मैंने सोचा सीट कवर करके रखूंगा और सो लूं तो अच्छा रहेगा, जर्नी चली जाएगी। तब बोल के फिर वो रियल क्वेश्चंस में आ गए। फिर उन्होंने बोला कि ओके मींस वी विल स्टार्ट दिस इंटरव्यू एंड आई लास्ट क्वेश्चन, गिव फ्रीली, मतलब गिव योर आंसर फ्रीली आउट ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट, आई विल डू दैट फॉर 40 to 30 minutes। तो हमने स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, पीआईक्यू से रिलेटेड, फादर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड। वो मैं सर प्रिपेयर था एक्चुअली। मेरा माइंडसेट ये था कि जैसे जीटीओ से आया तो माइंडसेट ये था आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मतलब मैंने प्रिपेयर किया है अच्छी तरह से, और जो भी सर क्वेश्चन पूछेंगे मैं हैंडल कर लूंगा actually। ये मेरा माइंडसेट था। मतलब लिटरली मैं ऐसा नहीं था कि क्या क्या मैंने ये नहीं डिसाइड किया था कि क्वेश्चन ये पूछेंगे तो ये बोलूंगा। मैंने बस इन जनरल ये बोला था कि कुछ भी पूछेंगे आई विल हैंडल दैट, क्योंकि मैंने प्रिपेयर कर लिया है। और जो नहीं आएगा वो आराम से बोल दूंगा सर करंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई विल टेल यू आफ्टर दैट। बट ऐसा चांस मिला नहीं मुझे। जो उन्होंने पूछा मैंने सब बता दिया था, क्योंकि आई वाज प्रिपेयर्ड वेल again because of this in the coaching, Aman sir, Abhishek sir, you really helped me in this interview part also. ओके। So and Karna sir also who take my mock interview। बीच में सर एक पॉइंट था जो सर ने बोला कि हमारे इंटरव्यू सर मतलब इम्प्रेस हुए थे। बीच में एक पॉइंट था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि टेल मी हाउ मेनी वॉर्स इंडिया फॉट। तो मैंने बताया कि 1947 48 की वॉर थी, इंडो पाकिस्तान वॉर। देन 1962 की वॉर थी। तो विद दैट मैंने बोला कि सर आई हैव रेड दिस बुक बाय ब्रिगेडियर जॉन परशुराम दलवी, द हिमालयन बिल्डर, इंडो चाइना 1962। तो उस वक्त सर बोल रहे थे वेरी गुड यू रूड बुक एंड ऑन दैट टॉपिक आल्सो इट्स नॉट मोर, नॉट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स रीड अबाउट दिस थिंग बुक्स एंड दैट टू वॉर के ऊपर। तो वो एक पॉइंट था जहां वो इंप्रेस हुए थे। उन्हें एक स्माइल पास भी की थी और मैं भी खुश हो गया था एक्चुअली। मेरी वैसे ऑलरेडी स्माइल थी चेहरे पे थोड़ी थोड़ी सी, वो स्माइल थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी एक्चुअली में जब उन्होंने गुड बोला। तो ये बिल्कुल मिडल ऑफ द इंटरव्यू था आई थिंक, ये इंसिडेंट बिल्कुल मिडल ऑफ द इंटरव्यू था। बट उसके बाद अगेन फिर वो डांटने पे आ गए, एनडीए वाला क्वेश्चन और फिर एनसीसी वाला क्वेश्चन, सीडीएस इत्तिला की हुआ है ऐसा, मतलब इत्तिला स्क्रीन आउट कैसे हो गए हो। तो जब मैं बाहर निकला फिर मैंने बोला कि, और फिर उन्होंने मैंने दो तीन ब्लंडर तो नहीं बोलूंगा बट मुझे लगता है मैंने दो तीन गलत जवाब भी दिए होंगे जो आर्मी रिलेटेड ही थे। तो मुझे लग रहा था उसकी वजह से चांसेस बहुत कम हो गए थे, मतलब उसकी वजह से न्यू कर देंगे बिल्कुल। तो एज आर्मी और पापा आर्मी टूर में है, मैंने टैंक रिलेटेड से एक वो कर दिया था। ओके स्टिल सुजीत, बट अगर ये गलती होती है सबसे। कि अगर आपको फिर से एक बार एसएसबी देने का मौका मिले और आयु आपसे पूछे कि अपने पर्सनालिटी को 3 शब्दों में बताओ, तो तुम क्या बताना चाहोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा सर ट्रूथफुल एक्चुअली में, बिकॉज जो सच होता है वो आ ही जाता है सामने मेरा सर, मेरे मुंह से। एक्चुअली मैं मतलब गलत तो बोल नहीं सकता, मतलब क्या बोलूं उसे मैं, झूठ बोलना से बहुत मुश्किल है मेरे से, बताऊं तो थोड़ा टफ लगता है झूठ बोलना। तो ट्रूथफुल मैं सबसे पहले ये बोलूंगा। एंड द सेकंड थिंग आई विल सर, मैं ये क्या कहते हैं हार्ड वर्किंग रेजिलियंट जरूर बोलूंगा। जो सर मैंने फेस किया है सर इतनी सारी चीजें एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ऐसे सीडीएस ज्वाइन करना, मतलब डिसाइड करना प्रिपेयर करने के लिए, स्क्रीन आउट इतने फेस आउट किए मैंने बिना जो डायरेक्शन ही था। उसके अलावा मतलब उसके अलावा भी मैंने प्रिपेयर किया, मतलब डिसाइड किया कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और मैंने इतने सारे चीजें फेस करके मैंने जो मतलब रिकमेंड हुआ और फिर मेरिट भी आई, इतना खुश हुआ था। तो आई डेफिनेटली से सर मैं रेजिलिएंट वन, मतलब आई नॉट, आई मीन अगर फाइट की सिचुएशन आई डेफिनेटली फाइट, देयर इज नो पॉइंट ऑन इट। एंड सर थर्ड मींस आई
थर्ड एक्चुअली व्हाट आई कैन से कि आई एम अ ग्रुप पर्सन, मतलब अगर लोगों के बीच में रहो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। मतलब बोलता कम हूँ बट लोगों के बीच में रहो तो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ओके ओके, चलो ठीक है, कुछ रैपिड फायर खेल लेते हैं। लाइक जो भी नया स्टूडेंट तैयार करना चाहता है, उसको तुम 3 स्ट्रेटेजी 3 शब्दों में बताओ, तुम उसको कैसे स्टार्ट करने के लिए बोलोगे फॉर द एसएसबी। रिटर्न रिटर्न और फॉर एसएसबी। फॉर एसएसबी। फॉर एसएसबी 3 शब्दों में। फर्स्ट सर डेफिनेटली अपने आप को जान लो सर, अपने आप को, आप में क्या कमियां है उसको फेस कर लो। और स्ट्रेंथ्स तो मैं बाद में बोलूंगा, बट सबसे पहले फोकस करो कि आपके में क्या कमियां क्या हैं, और उसको फेस करके उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर वो एसएसबी में एक रियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो डेफिनेटली उसको सुधारने की कोशिश करो। सेकेंडली अगर आप मतलब गाइडेंस ले सकते हो तो डेफिनेटली एक मेंटर ले लो, मतलब 2 मेंटर आप जैसे हो तो अच्छा ही रहेगा। बट डेफिनेटली अगर टाइम वेस्ट, मतलब इन द सेंस कि सर इस टाइम पे गाइडेंस मतलब एक मेंटर होना काफी जरूरी है। अगर आप एसएसबी पे कर रहे हो, एसएसबी इज नॉट अ सिंपल थिंग, मतलब 5 डे लंबा प्रोसेस है, बिल्कुल ही डिटेल में जाके इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बच्चे का माइंड पूरा खोल देते हैं। तो अगर गाइडेंस हो तो अच्छा है, खुद से करना थोड़ा मुश्किल है, बच्चे कर लेते हैं बट स्टिल गाइडेंस विल हेल्प। एंड थर्ड थिंग सर आई से कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब ये मत सोचना कि गिव अप मत कभी करना, ये मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ बिलीव जरूर होना चाहिए सबसे पहले तो, अपने आप को जान लो, गाइडेंस ले लो, और सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर बीच में आ गया कि आप नहीं कर सकते तो आप फंबल कर जाओगे बहुत सारी जगह पे, किसी ना किसी टास्क में फंबल कर जाओगे, गलती कर जाओगे, और फिर वो नल वर्ड हो जाएगा फिर आपका ऐसे। ठीक है ये ठीक 3 चीजें अगर स्टार्टिंग में करोगे तो ये 3 चीज रहेगा, बाकी तो सब मेंटर सब संभाल लेंगे। है। ओके गुड, चलो अब एक और सेक्शन की तुम्हारी बात करें जाए। हाउ वाज योर साइक? तो साइक वाज टफ सर एक्चुअली फॉर मी। मैं थोड़ा नर्वस था फर्स्ट क्लास में था, बट स्टिल नर्वस था मैं, क्योंकि मतलब स्टोरीज लिखना मैंने बंद कर दिया था एक तरीके से। जितना मैं चार्ज हो गया था, तो स्टोरीज लिखना थोड़ा बंद कर दिया था मैंने। बट उससे पहले मैंने स्टोरीज तो भी लिख ली थी। और मैंने, याद है कि कोचिंग में ना एक रिकमेंडेड कैंडिडेट था, उन्होंने ये मुझे मतलब एक पॉइंट बताया था कि आप ना क्या बोलते हैं टॉपिक्स और ये थीम्स लिख लो। थीम्स तो मैंने लिखे थे, मैंने 4-5 थीम लिखे थे, बट व्हाट हैपेंड कि जब मैं साइक में बैठा और मैं रियलाइज किया कि अगर मैं अपना जो स्टोरीज हैं वो मैं पीआई के रिलेटेड बनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लाइफ। क्योंकि ऐसा होता है जब अपन मतलब प्री कंसीव्ड आइडिया लेके जाते हैं, टॉपिक के जाते हैं, तो उधर वो कभी कभी स्टोरी से मैच नहीं होता, और फिर वो उसके उस आइडिया को स्टोरी में मोल्ड करने में टाइम लग जाता है। उस आइडिया को स्टोरी में मोल्ड करने में टाइम लग जाता है, और फिर वो 4 मिनट का टाइम मिस आउट हो जाता है, स्टोरी इनकम्प्लीट हो जाती है या फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा आइडिया यही था कि सिंपल स्टोरी रखूंगा, अपने पीआईक्यू से रिलेटेड रखूंगा और अपने लाइफ रिलेटेड रखूंगा। और मैंने डेफिनेटली यही किया था सर। अपने फैमिली के मैंने अपने छोटे भाई के ऊपर स्टोरी बनाई थी, पापा के ऊपर स्टोरी बनाई थी, बड़े पापा के ऊपर स्टोरी बनाई थी, अपने फ्रेंड्स के ऊपर स्टोरी बनाई थी, ये थी। और क्या कहते हैं, मैंने फिर एक न्यूज़पेपर ने मुझे हेल्प किया था कि मैंने न्यूज़पेपर से 4 स्टोरी निकाली थी, 4 से ज्यादा निकाली थी। और मैंने उसको लिख लिया था, और मुझे वो अच्छी स्टोरी थी तो मेरे दिमाग में थी ऑलरेडी, क्योंकि वो एक लिटरल स्टोरी थी और फिर जेन्युइन स्टोरी थी जो रियल लाइफ से निकल के आई थी न्यूज़पेपर से। तो वो मेरे दिमाग में मैंने रख लिया था, और जो मुझे फोटो दिखी मैंने वहीं लगा दिया था। और ऐसे मैंने 4 स्टोरी लिखी थी, और बाकी मैंने फैमिली रिलेटेड की थी, अपने पीआई के रिलेटेड, बास्केटबॉल गेम्स के बारे में लिखी थी, के बारे में। ओके, और जब 12 स्टोरी प्रिपेयर करके जाओ तो अच्छा रहेगा, 12 स्टोरी प्रिपेयर करके जाओ तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, टाइम वो कम हो जाएगी ठीक है ठीक है, जब फिर। तुम रिकमेंड हुए थे तो शायद तुम्हारा फोन खराब हो गया था, और तुम एक हफ्ते बाद हमें इन्फॉर्म कर पाए ना? हाँ यस सर, वो तो सर मेरा एक्चुअली एसएसबी के एक दिन पहले ही खराब हो गया था। तो मेरे पास कैश भी नहीं था, मैं सोचा ऑनलाइन पेमेंट कर लूं, मेरे पे कैश वैश कुछ भी नहीं था एक्चुअली में। और वो तो एसएसबी था इसलिए बोर्ड था, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कैश की जरूरत कम जरूरत पड़ी थी मुझे। बट स्टिल मैंने फिर अपने फादर को अपने मतलब एक दोस्त था मेरा जो सेम एसएसबी फेस करने जा रहा था, उसको उसके थ्रू मैंने फादर को कॉल किया, उसके एटीएम में मैंने पैसे डलवाए, फिर मैंने कैश आउट किया 500 रुपए। मैंने फिर उसे 3 दिन मतलब 5 दिन सर्वाइव किया, 5 दिन रिकमेंड हो गया, फिर 5 दिन और सर्वाइव करना पड़ा उससे ही मुझे, जब मेडिकल्स थे उसी वक्त। और तभी भी पर फोन नहीं था मेरे पास। इसका साइक टेस्ट तो बाद में शुरू हुआ है, एसआरटी पहले शुरू हो एसआरटी गया पहले था। शुरू हो गई थी। और सही, ये बात सही बोल रहे हैं, रिकमेंड ये होने लाइफ था रियल टाइम से। रिकमेंड होने के बाद किसको कॉल किया सबसे पहले? सर कॉल तो मैंने किसी को नहीं किया, कॉल मैंने किसी को नहीं किया था, नहीं सर सीन पता है क्या था, जैसे मैं रिकमेंड हो गया था तो खुशी थी एक्चुअली में, खुशी थी, बट फिर मुझे पता चला मेडिकल्स भी हैं। तो इससे पहले मैंने मेडिकल्स को अपना टेस्ट कराया नहीं, एक्चुअली फुल बॉडी टेस्ट कभी कराया नहीं था।
दौड़ता था, फिट रहता था, जिम रहता था, अच्छा खाना खाता था, बट स्टिल मैंने फुल बॉडी टेस्ट नहीं कराया था। तो मैंने सोचा मेडिकल में कुछ ना हो जाए, मैंने रिकमेंड हो गया था, तो फोन भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा अगर बताऊंगा तो मेडिकल फिट इंसान ही बताऊंगा। और मैंने नोटिस किया था कि जो चेस्ट नंबर होता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, उनके यहाँ +1 होता है, तो आई कंसिडर दैट कि वो +1 मेडिकल फिट का होता है। तो उन्हें ऑलरेडी मेडिकल फिट दे दिया था, बट मुझे लगा कि अगर रियल मेडिकल फिट हो जाऊं तभी मैं बताऊंगा। तो मेडिकल फिट होने के बाद तो मैंने पापा को ही बताया था इससे पहले। और पापा उस टाइम ना लद्दाख में थे उस टाइम, तो 2-3 बार मैं फोन लगाया, उठा ही नहीं पाया था। तो कुछ घंटे बाद किया था, क्या हो गया क्या हो गया, मतलब आप कौन हो ये सब, फिर उन्होंने बताया कि मैं स्वदेश सिंह रिकमेंड हो गया हूँ यहाँ से। तो खुश हुए थे। फिर मैंने आई थिंक बस पापा ही बताया था, फिर मैंने सोचा अगर फोन से ही हो जाएगा तो घर जाके मैं सबको बता दूंगा फिर एक्चुअली में। ओके ओके ओके, अच्छा बताओ, ये तुम्हारा ओटी में प्रेफरेंस क्या रहने वाला है? मैं सर इंटरव्यू सर ने यही पूछा था, मैं सर आर्मड ही दूंगा एक्चुअली में, प्रेफरेंस हुआ और अगर मैं केपेबल हूँ तो आर्मड डेफिनेटली फिर आर्मड। वो दिन और उसके बाद फिर बट ये जरूर था सर, एक्चुअली मैं हैप्पी था, बट मैं एक्चुअली से बताऊं तो मैं खुश हूँ कि अगर मुझे कुछ भी मिल जाएगा डेफिनेटली सर माय बेस्ट एवरी प्लेस, ठीक मतलब है, बट स्टिल अगर हो सके तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा। प्रेफरेंस अपना आमर डालना, अच्छे स्कोर्स लाना, अपना जो एकेडमिक का रिकॉर्ड्स है वो अच्छा रखना, ताकि तुम्हारे फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हें मिल जाए, क्योंकि वो सारी चीजें तुम्हारा वहाँ परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगा। ओके, तो डे 1 से ही उस रेस ओके में लगना। ओके सर, एक्चुअली मुझे सर एकेडमी के बारे में पता नहीं है कुछ कि एकेडमी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज चाहिए होती ओके है। ओके, नो इशू। तो मैं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें बातें कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, और उसके बाद कॉल करना। हाँ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ एट योर ओटीए, व्हाट इज गोइंग टू बी। हाँ डेफिनेटली सर डेफिनेटली। ओके, कोई और सजेशन जो देना चाहोगे, जो तुम्हारे नए रंग रूट, जो तुम्हारे नए भाई बहन छोटे जो अभी अपियर होंगे, उनके लिए कोई सजेशन देना चाहोगे? सर रिगार्डिंग एसएसबी, हाँ? एसएसबी तो मैं ये बोलूंगा सर लाइटली मत लेना, जैसे कि बच्चे ना कभी कभी लाइटली लेते हैं एसएसबी को, कि मतलब साइक है तो हो जाएगा, जीटी है हो जाएगा, कर लूंगा, बट लाइटली नहीं है ना, आपको डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना पड़ेगा और थोड़ा मतलब प्रिसाइजली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी लाइटली ले लिया ना चीजों को, तो कुछ चीजें मिस आउट हो सकती हैं, अटेम्प्ट कम रहते हैं सीडीएस और आईएमए के, मतलब कि एनडीए के भी कम ही रहते हैं एक्चुअली में। अगर आपने थोड़ा सा भी लाइटली ले लिया ना पीरियड ऑफ टाइम में, तो मिस आउट हो सकता है बिल्कुल, मतलब एक फोकस के साथ, वो होता नहीं है जो अर्जुन का वो था, बिल्कुल एक फोकस के साथ प्रिपेयर करोगे ना तो डेफिनेटली दिस विल हैपन। ओके, दैट्स ये ग्रेट, बोलूंगा सर। सुदेश। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपके साथ वो समय बिता के, आपका मेंटरशिप करके। आई होप कि जल्दी आप यस एकेडमी में होंगे, और जल्दी हम आपके पीओपी में आ रहे होंगे, आपको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेते मिलता हुआ हुए देख। देख। ओके, sort of on actually sir definitely sir, definitely I'll try my best sir actually। aim large so that you can achieve that. Okay. एक्चुअली मैं यही बोल रहा था सर कि एम था मेरा सर का, बट मैं ये बोल नहीं सकता, बट माइंड में रहेगा कि आई डू This is माय बेस्ट फॉर दैट थिंग ओनली। and wishing good luck for your future, Swadesh. थैंक यू सर एंड अभिषेक सर टू यू आल्सो, मतलब Thank you, thank you. कांग्रेचुलेशन फर्स्ट फॉर गेटिंग रिकमेंडेड एंड सेकंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेरिट एंड दिस एकेडमी लाइफ आल्सो। बहुत जल्दी ये उधर सामने होंगे, एंड देन वी विल बी इंटरव्यूइंग कि ये कैंडिडेट ये सर ये थोड़ा मजेदार होगा, ये सर ये सारे थोड़ा मजेदार होगा। इंटरव्यू का, कि जब हम जो हमारा आएगा स्पेशल इंटरव्यू। ठीक है, ओके ओके ओके, सो विश यू गुड लक सुदेश, सी यू अगेन। ओके, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, डेफिनेटली जय हिंद सर।